Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are moving towards this chapter 2, political science, federalism, where we have discussed a lot about federal structure of India. The Indian federal structure, an ideal structure for the other parts of the world. Very important things we have done in this, yes. Again, I'm telling the same things because take it as a general awareness chapter, children. Federalism is a part of Indian political system. India is recognized due to its federal practices and due to its federal structure. So, students, we need to understand it very clearly that federalism is practiced on a very large scale in India, and initially there were two tiers of government. Last class what we have discussed that the introduction of the third tier of government, and this had happened in 1992. क्या हुआ था? Process of decentralization. बहुत काम है, बहुत सारे लोग हैं. So many people in India, so many problems of the Indians, so many ways to solve the problem. So the Indian government, the people who were there in power, they thought that let's share the power of the center and the state. थोड़ा power, जैसे कि there were two level of government, center and state. इनसे थोड़ा पावर लेके क्या बना? द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन गया था ये 1992 में ही. इट वॉज मेड इन 1992, लेकिन पहले ही बन गया था, लेकिन इसमें मेजर पॉइंट्स हैव बीन एडेड इन 1992 क्योंकि decentralization happened. There are people who would be looking after decentralization, who would be looking after the functioning of the state, functioning of the city. Lekin, actually there needed to be certain portfolios that needed to be decided. Portfolios, please try to understand. This is a political terminology. कौन क्या काम करेगा? Got it? Please understand that who will be doing what work. That was a major step which was taken through decentralization, and some points were introduced formally and the constitution was amended. Amendment, I told you ना, there is never changes in the constitution. Constitution बार बार बदलने लगेगा तो फिर country का मतलब क्या बन जाता है? Constitution एक ही बार बनता है, and there are certain certain policies that are introduced, certain amendments that are done in the constitution. So क्या हुआ? सबसे पहली चीज, the first thing that happened for this was that regular elections were to be held. That was made mandatory. Regular elections were to be held in local self government. वही बात है कि गवर्नमेंट बनी है, लोगों को काम करना है, लेकिन पता तो होना चाहिए किसको क्या काम करना है. Who will be doing what work and whose power is to what extent. किस हद तक किसी का पावर है, ये चीज समझना तो जरूरी है. That is important to understand. Okay, पहली चीज तो ये हो गई. The another thing that happened here is 1/3 seats are reserved. अब देखो पावर शेयरिंग, द रियल सेंस ऑफ पावर शेयरिंग यहाँ पे हमको नजर आ रहा है. दैट सीट्स आर रिजर्व्ड in the elected bodies and executive heads of these institutions. Seats are
reserved for these elected bodies. इसमें सीट्स रिजर्व्ड हैं और जो इसके हेड होंगे, ये जो लोकल गवर्नमेंट के जो हेड होंगे एंड executive heads of these institutions and executive heads of these institutions for SC and ST. Scheduled caste एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ओबीसी. भाई फेडरलिज्म प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म. तो खाली कहने के लिए हमको नहीं देखना है ना, वी हैव टू सी दैट इन प्रैक्टिस ऑल्सो पावर इज गिवन टू द lower classes, the scheduled castes, scheduled tribes, and the certain bodies whose seats are reserved. जिनकी seats जो है वो reserved है, उनको equal rights मिलने चाहिए, उनको equal power मिलना चाहिए. टॉप मोस्ट पोजिशंस में बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस नहीं है, वैसे तो पार्लियामेंट में रिजर्वेशंस आर देयर, दैट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आगे हम पढ़ेंगे, वी विल बी रीडिंग अबाउट इट फर्दर. लेकिन छोटी छोटी जगहों में, इन स्मॉल विलेजेस ऑल्सो, पीपल शुड बी फीलिंग एम्पावर्ड बाय गिविंग देम रिजर्वेशंस. वन वेरी गुड प्रैक्टिस थ्रू विच empowerment of the lower caste and lower bodies was recognized. इसके बाद अभी तक हम बात कर रहे थे दैट इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन, औरतों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, खाली बोलने के लिए नहीं था. सो एटलीस्ट 1/3 of all positions are reserved for women. अब देखो, just see how the power is being distributed, how it is being widened. खाली शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए ही सीट्स रिजर्व नहीं है. लोकल गवर्नमेंट में सीट्स आर 1/3 सीट्स, दैट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. अब एक क्वेश्चन आता है, हु इज द मेयर ऑफ वाराणसी? वाराणसी में ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शंस हुआ, उसमें हु इज द लेडी हु इज, क्योंकि सीट तो रिजर्व है लेडीज के लिए. यस, so you know it very well. हाँ, we will be discussing it in the online sessions, in the online classes. कि जब सीट रिजर्व है, so it is reserved for whom? किसके लिए सीट्स रिजर्व है, ये हमको बताना है, और ये I will be asking the question in the online session. After that, independent institutions were established. अब ये इंस्टीट्यूशंस वर्क करेंगे, इसके लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट. स्टेट के इलेक्शंस हो रहे हैं एंड सच लार्ज लेवल इलेक्शंस आर हैपनिंग. सो सम बॉडी, some organization needs to be responsible for conducting these elections. ये elections conduct करवाना किसी की जिम्मेवारी होनी चाहिए ना. Everything cannot be put up on the सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंटर के ही कंधे पे सारा भार नहीं डाल सकते हैं. सो जस्ट सी हाउ द पावर शेयरिंग इज हैपनिंग. किस तरह से हर एक लेवल के लोगों के साथ पावर शेयरिंग किया जा रहा है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इज हैपनिंग ऑन अ लार्ज स्केल. सो there was a separate institution called
स्टेट इलेक्शन कमीशन छोटी छोटी जगहों पे तो इलेक्शन कराना ही है, छोटी छोटी मतलब कि अब all India elections are happening, that is being looked after by the election commission that is there conducting elections in the country. But these state elections which are happening at the panchayat level, this also needs to be looked after. So a state election commission has been created to conduct municipal and panchayat elections. पंचायत इलेक्शंस होल्ड करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन जो है ये एस्टैब्लिश किया गया है. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशंस आल्सो कम अंडर द main election commission that is there. They have to report each and everything that is being done in the panchayat elections at the local level. वो उनके under the power and under the recognition of the center government. This is also looked after. State government क्या करते हैं? They are required to share some power and revenue with local bodies. State में जितना भी पैसा आ रहा है, state government requires to share the profit and revenues with local government. अरे भाई लोकल गवर्नमेंट है, सफाई का काम कर रहे हैं, स्कूल्स देख रहे हैं, कॉलेजेस देख रहे हैं, विलेज पंचायत, हेल्थ फैसिलिटीज. आजकल तो हेल्थ फैसिलिटीज यू नो इट, बताने की जरूरत नहीं है. सो मच ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द हेल्थ फैसिलिटीज. किस हद तक का अरेंजमेंट किया जा रहा है, यू कैन सी इट वेरी वेल. एक के बाद एक प्रॉब्लम्स लगी हुई है. सो हाउ टू डील विथ दीज प्रॉब्लम्स? मनी इज नीडेड. So state government is providing money to these panchayats and these municipal corporations. Rural local government is popularly known as Panchayati Raj. Rural local government is popularly known as Panchayati Raj. Got it? पंचायत गांव के लोग हैं, गांव में पंचायत होती है, एंड हरियाणा एंड ऑल चौपाल भी कहते हैं. तो ये सारा होता है एवरी विलेज, हर एक विलेज में, और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस हैज अ ग्राम पंचायत. You all are attached to some or the other villages. हर एक लोग किसी न किसी विलेज के साथ attached हैं. So you all are very well aware that each village has got a panchayat. हर एक विलेज में आपको ये पंचायत मिलेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पंचायत और ग्राम पंचायत. ठीक है, ये सब 1 मार्क के लिए आएगा. व्हाट इज अ ग्राम पंचायत, व्हाट इज पंचायती राज, इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क, सो प्लीज प्रिपेयर फॉर इट. इसमें क्या होते हैं, कौन चलाता है इसको, who are the people looking after the gram panchayat and who are the people looking after the panchayat. So there is a council consisting of several ward members. There is a council consisting of several ward members. Got it? ये वार्ड के सदस्य होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज पंच.
and a president or sarpanch. These are called as पंच, and इनके जो लीडर होते हैं, द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज सरपंच. यस, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज. आपको ये वर्ड्स अच्छे से पता है. एंड इनका इलेक्शन होता है. एडल्ट पॉपुलेशन डज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. They are elected by the adult population. इनका इलेक्शन कैसे होता है? How are these people elected? क्या इनको नॉमिनेट कर सकते हैं कि नहीं? अब आप पंच हो, आप सरपंच हो. नो, it doesn't happen like that, my dear students. ठीक है? So the adult population, they are elected by adult population ऑफ दैट वार्ड. उस वार्ड के जितने एडल्ट हैं वो वोट करते हैं. दैट इज पीपल अबव द एज ऑफ 18. दे वोट एंड दिस इज हाउ द सरपंच और द पंच इज इलेक्टेड. गॉट इट? अब क्या होता है कि पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा. पूरी सभा होती है. ओके, पंचायत वर्क्स under the supervision of ग्राम सभा. गांव में जो एक सभा होती है उसके अंडर में ये पंच काम करते हैं. ये पंचायत मेंबर्स आर देयर. ऑल द वोटर्स, जितने भी इस ग्राम सभा के मेंबर्स कौन है? दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड पीपल नहीं है. ऑल द पीपल इन द विलेज आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा. इस ग्राम सभा के वो सारे मेंबर्स हैं जो कि विलेज में रह रहे हैं. देखो किस तरह से हाउ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन हैड हैपेंड. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. कितना लोअर लेवल तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन हैज टेकन प्लेस. ऑल द वोटर्स आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा. ठीक है? मीन्स ऑल द एडल्ट पीपल, जितने भी एडल्ट हैं. कब इनकी मीटिंग होती है? दे मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर. बजटिंग होती है ना. गांव में भी तो देयर इज वेलफेयर एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द विलेज. यस, इन द विलेज चिल्ड्रन, द एग्रीकल्चरल अरेंजमेंट्स हैव टू बी डन. कैनाल्स लगाना है, पंप लगाना है, ट्यूबवेल लगाना है. किसी की कुछ और प्रॉब्लम्स है, दैट इज टू बी लुक्ड आफ्टर. सो देयर इज एनुअल मीटिंग एंड 2-3 times they meet in a year. एक साल में 2-3 बार ये लोग मिलते हैं. एंड डिसाइड टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत. उस ग्राम पंचायत में कितना पैसा काम करना है, कितना पैसा लगेगा. एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत. द एनुअल बजट इज डिसाइडेड. इसमें पूरा इन दीज मीटिंग्स, इसमें पूरा मतलब कि देयर इज अकाउंटेंट एंड एवरीबडी हु आर इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत. उस गांव के जितना भी इकोनॉमिक फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, दे ऑल मेक दिस एनुअल बजट. उसको पेश करते हैं. तब डिसाइड होता है कि कितना पैसा उस गांव को दिया जाएगा. हाउ मच मनी वुड बी अलॉटेड टू दैट विलेज. एंड परफॉर्मेंस ऑफ द, ये नहीं कि पैसा दे दिया और पैसे उड़ा दिए किसी ने भी. नो. ठीक है? एंड परफॉर्मेंस मतलब कितना काम हुआ. परफॉर्मेंस का मतलब ये समझो, परफॉर्मेंस ऑफ द
ग्राम पंचायत इज असेस्ड। देखते हैं, समझते हैं कि आखिर कितना काम हुआ है, असेसमेंट होता है, देयर इज रिव्यू, हाउ मच वर्क हैज द ग्राम पंचायत डन। ओके, ये तो गांव की बात हो गई। आप देखो किस लेवल तक कितना ज्यादा काम हो रहा है। लुक एट द काइंड ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन एट द लोएस्ट लेवल। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अब जो है गांव से ऊपर आते हैं। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर goes to डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब चले जाते हैं शहरों में। गांव का काम जो हो रहा है, गांव तो हमेशा से शहर से ही जुड़े हुए हैं ना। Whatever is the performance in the villages, that is very clearly attached to the towns. शहरों से तो जुड़े ही हुए हैं। एंड ग्राम पंचायत जो है, इनको साथ में जोड़ के ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड फॉर्म इज पंचायत समिति। ग्राम पंचायत है, देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गांव तो छोटा है ना, ग्राम पंचायत, गांव की जो पंचायत है वो तो छोटी है, उसको बड़े लेवल पे कैसे लेके जाएंगे? इट हैज टू बी इट इज द मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ सच अ बिग सिस्टम। सबसे छोटा वाला पार्ट इज इट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। सो ग्राम पंचायत 10-12 गांव मिला के एक पंचायत समिति बनती है, या ब्लॉक बनता है, या मंडल। ओके, a few ग्राम पंचायत, ठीक है, आसपास के गांव सारे मिलके एक पंचायत समिति बनाते हैं। टुगेदर फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ठीक है, सबसे पहले पंचायत बना, फिर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और ये कहां तक जा रही है? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जा रही है। अब यहां ब्लॉक या मंडल के पीपल को कौन इलेक्ट करता है? हु इलेक्ट्स द पीपल ऑफ द ब्लॉक और द मंडल? So elections are happening. Member of this representative body are elected by all panchayat members. इस मंडल कमिटी, ये जो मंडल समिति है या पंचायत समिति है, इसमें everybody will not vote. Who will vote? The members of this समिति, ये जो पंचायत समिति है। Are elected by panchayat members in that area. Are elected by panchayat members in that area. पंचायत मेंबर्स आर देयर, उस एरिया में वो लोग मिलके इनको इलेक्ट करते हैं। एंड all the पंचायत समितिस, ये जितनी भी बड़ी बड़ी पंचायत समिति है और मंडल्स आर देयर इन अ डिस्ट्रिक्ट, टुगेदर मेक अ जिला परिषद। ये पंचायत समिति मिलके, ऑल दिस पंचायत समिति टुगेदर मेक अ जिला परिषद। ठीक है, सो पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला। अब डिस्ट्रिक्ट में आ गए ना, डिस्ट्रिक्ट में आ गए तो ये पंचायत समिति की जो मेंबर्स हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद। The जिला परिषद are elected, most members of the जिला परिषद के जो members हैं, the members in the जिला परिषद
are elected. The members in Zilla Parishad are elected. Elections होती है on a very large scale. अब the members who are there of the Lok Sabha and MLAs of that district are also its members. बड़ा है ना, जिला परिषद है, तो जिला परिषद के जो members हैं, they are the renowned people in the city, in that district. MLA है members of legislative assembly, जो state government के elections में जो जीते हैं. The MLAs are there, and some other officials are also there at the district level bodies. They are also its members. So Zilla Parishad chairman is the political head of the Zilla Parishad. अब इसका हेड कौन होगा? इतना बड़ा सा ये काम कर रहा है. So who is heading this committee? So पहले तो ये समझो that members of लोक सभा और local MLA are members are also members of जिला परिषद. ठीक है, तो जिला परिषद का चेयरमैन कौन होगा? हु विल बी लुकिंग आफ्टर द वर्किंग ऑफ द जिला परिषद? सो जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद. जिला परिषद चेयरमैन is the local head of Zilla Parishad. Got it? जिला परिषद के जो लोकल हेड हैं वही चेयरमैन होंगे. अगर जिला परिषद में कुछ प्रॉब्लम होती है या जिला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो पीपल वुड बी गोइंग टू दिस प्लेस. गॉट इट? हाँ, इतना आपने समझ लिया है. इसको हम एक बारी कल फिर रिवाइज कर लेंगे. And we are towards tomorrow we will be completing this chapter, children, and so we would be in a comfortable position. Okay, 2-3 things I'll show it to you in the book itself. Come, let's see. So students, decentralization we have done today. आज जो हमने किया, मेजर पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड. ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली लिखने पड़ेंगे चिल्ड्रन. You have to note it down, the major points that were included in the amendment of constitution of in 1992. Constitutionally mandatory to hold regular elections and seats are reserved. ये तो elected bodies में seats are reserved. This is a very important point for power sharing. पावर शेयरिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर विमेन. विमेन के लिए ये जो है, हम जब भी विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, वेन एवर वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट वी नीड टू मैंशन अबाउट दिस दैट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर विमेन. ये हम लोगों को देना ज़रूरी है. देन स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज फॉर्म्ड. क्योंकि स्टेट छोटी छोटी शहरों में इलेक्शन कराने हैं, इलेक्शन कमीशन विच इज़ होल्डिंग इलेक्शन फॉर द होल कंट्री, वो कितना करेंगे. सो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड हर एक स्टेट में कि ये लोकल वाले इलेक्शंस कराएंगे. एंड देन यू नीड टू मैंशन अबाउट कि they are also getting, local government bodies are getting some money also, some revenue also. तो शेयरिंग वैरीज फ्रॉम हर एक. कोई स्टेट ज़्यादा पैसे शेयर करता है पंचायत के साथ, कोई स्टेट कम पैसे देता है पंचायत को. तो इट डिपेंड्स. रूरल, अब ये पंचायती राज, व्हाट इज़ अ पंचायती राज? रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ नोन बाय द नेम पंचायती राज. ओके, देन how are they elected? They are the house the sarpanch elected.
सरपंच उसका हेड कौन होता है, सरपंच होता है हेड, एंड हाउ इज़ ही इलेक्टेड, ये आपको बताना है. एंड लोकल गवर्नमेंट गोज़ अप टू द एंड व्हाट इज़ ग्राम सभा, इसके बारे में भी प्लीज़ डू टेल अबाउट द ग्राम सभा. एंड द पंचायत समिति एंड द मंडल्स, ब्लॉक्स और मंडल्स, ये सारे पॉइंट्स चिल्ड्रन यू नीड टू डू इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट इट? चलो, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास rather. Till then, thank you so much and all the best to you.